Hello and welcome to my virtual classroom. Welcome to the CSEET batch of 2021. I'm Ashwini Rajanwale and I'll be teaching you business communication. Okay, business communication. जैसे the study of business communication is extremely critical. Uh, why do we study business communication? See, all of you are CSEET. You are preparing for CSEETs. You are CS aspirants. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोग बिजनेस कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो मैं आपको वही बताऊंगी. सबसे पहले अंडरस्टैंड business, the study of business communication is extremely critical. You need to understand why you are studying this. You need to understand the study that you're going to do. Why are you doing it? See, business communication is nothing but interacting, communicating, talking, discussing all the elements, all the important how do you say, all the important transactions of the business. Basically making communication in the business is very important. तो वो जो कम्युनिकेशन होता है, इट कैन बी इनसाइड अ बिजनेस, इट कैन बी वन बिजनेस टू अनदर. तो ये जो बिजनेस का कम्युनिकेशन होता है, इसको समझना, ये किस तरीके से बात किया जाता है, हाउ इट इज डन, टू अंडरस्टैंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी स्टडीड बाय अस दिस टाइम. ओके, what is business communication? Business communication is derived from the Latin word not important. हमको क्या इंपॉर्टेंट है समझना कि इसका इन्फ्लुएंस हमारे CSET एग्जाम्स पे क्या रहेगा. पहले तो इसके अंदर try to understand one thing very nicely, that in spite of the fact that a lot of things that you will be studying in the portions will be something that you have already done. As it is communication, you will be focusing on grammar as well, which is again हम सब ने वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई है. तो आई एम श्योर इट विल बी बोरिंग, इट माइट गेट अ लिटिल बिट, ये सारी चीज़ हम लोग वापस क्यों पढ़ रहे हैं, ये यूजलेस है एक्सेट्रा. बट लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, इट इजंट. इफ यू वांट टू एस योर एग्जामिनेशंस, यू नीड टू गेट दिस डन ASAP. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोग वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे. नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट, ये दो सब्जेक्ट्स, ये दो वर्ड्स क्या मीन करते हैं, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ. बिजनेस, वी ऑल नो व्हाट बिजनेस इज. आई डोंट थिंक 2021 के पैंडेमिक में हमको बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि बिजनेस क्या है, क्योंकि वी ऑल नो वी आर लिविंग इन अ पैंडेमिक एंड even after being in a pandemic, even after living in the pandemic, we are able to see there are people working and working constantly and मतलब काम कर रहे हैं in spite of the fact that there is a disease, there is a deadly virus going on, है ना. बिजनेस इज नथिंग बट, फिर भी मैं आपको समझा देती बिजनेस क्या होता है. जैसे आप, हम लोग घर के नीचे उतरते हैं, हम लोग नागपुर के, हम लोग जानते हैं कि नीचे हमको सबसे पहले, घर के सबसे पहले नीचे आपको आसपास में मिलेगा तर्री पोहा सुबह सुबह. तो ये एक वेंडर जो है, जो हमको तर्री और पोहा मस्त से गरम गरम बना के दे रहा है, ये ही इज प्रोड्यूसिंग अ गुड to sell it to us, okay, so that we can consume it as a consumer. So the process of selling and buying goods and services, it is nothing but a business मतलब वही एक काम करता है जो कॉमर्स है. बेसिकली कॉमर्स ये जो टर्म है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है. एज नॉट जस्ट बीइंग अ CS स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट इन कॉमर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट अ बिजनेस इज. एंड एक्चुअली आपको ये इंपॉर्टेंस इस साल समझ में आ गई होगी, एज आई टोल्ड यू. Nevertheless, communication. What is communication? Communication is transfer of information from one person or one part of the association to another. Okay, तो ये जो communication होता है, ऐसे बोल सकते हैं, the communication part is a very critical and it is a very important part. Why am I saying is it important? Understand, if communication fails to, अगर communication fail हो जाएगा, आपके आप association में properly communicate नहीं कर पाओगे, there is a chance that your association will cease to exist. Yes, I'm right. I know I sound very serious and it is serious. आप सोचो, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. I'll give you an example. I'll just tell you a small short story. I'll try to make it brief. See what happened. There was an association. Actually, this happened in India somewhere. I don't know where, but एक association था. उसके अंदर मतलब उनके जो HR डिपार्टमेंट था, उनने क्या किया, दे माइट ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग क्या करेंगे, इस बार सबसे ज़्यादा जिस डिपार्टमेंट में अच्छा काम हुआ, हम लोग क्या करेंगे, उसको प्राइजेस देंगे. ये ऐसा चल रहा था. मतलब ये HR डिपार्टमेंट ने मोटिवेशन स्किल, एक दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट सम मोटिवेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स. तो अब इनने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्राई टू गिव देयर बेस्ट एंड उनने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी. सेल्स डिपार्टमेंट, एज इट इज सपोज टू इंक्रीज द सेल्स, वो अपने सेल्स के ऊपर इफेक्ट वर्क कर रहे हैं. सब अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह वर्क कर रहा है. अब इनने क्या किया,
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सपोज 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहिए, उन्हें 10 की जगह 12 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, दैट्स ग्रेट राइट, मोटिवेशन, दैट्स वेयर इट वर्क्स। तो उन्हें 12 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है, इनने मार्केट में प्रॉमिस कर दिया 20 यूनिट्स की, बिकॉज अगेन इट फोकसेस ऑन सेल्स एंड एवरीथिंग। तो अब क्या हो गया, एज देर इज अ लैक ऑफ 0.8 यूनिट्स, इनकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई। if sales department would have communicated and discussed and properly information exchange किए रहते और compete नहीं किए रहते एक दूसरे के साथ में, तो it would have worked out pretty good. They would have gotten their bonus or whatever motivation that was provided to them, पर नहीं हुआ। तो आप समझ रहे हैं कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। द फैक्ट दैट दे weren't communicating, the sales department wasn't communicating with the production department and it gave out promises that they couldn't fulfill, इसीलिए शायद दैट इज द रीजन वाई उन लोगों के प्रोमिस फेल हुए इन द मार्केट, द नेम गॉट सॉइल्ड इन द मार्केट। ओके, so I guess this was enough good example to explain you what communication, how important business communication is. Nevertheless, let's move on to the communication part. अब हम लोग हमारे CSEET पोर्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, we'll be first focusing on the grammar, its usage part, we'll be focusing on email, we'll be focusing on vocational skills comprehension, we'll be focusing on the vocabulary, because I hear your teacher, your business communication teacher at VPA will be focusing on increasing your vocabulary as well. Yes, even though understand हर एक इंसान का एक रेंज होता है पढ़ाई का, पढ़ाने का, हर एक चीज़ का। तो आई हियर वांट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ योर वोकैबुलरी। क्यों, क्या ज़रूरत है मैम रेंज इंक्रीज करने की? अभी आप लोग यहाँ पे हो नहीं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो मैं ही पूछ लेती हूँ, क्या ज़रूरत है मैम रेंज वगैरह इंक्रीज करने के लिए? हमारा तो चल ही रहा है जैसा। एक्चुअली बच्चों ऐसी बात है ना कि इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द इंटायर वर्ल्ड। ओके, मतलब बहुत सारे कंट्री में ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ओके, it is one of the most spoken language. If it is one of the most spoken language, you need to get a grip of it as strong as you can, because understanding कि हम लोग के जो laws होते हैं, grammar होता है, noun, ये सारी चीज़ें जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, अभी भी पढ़ना पड़ेगा। और this will help you first of all get a grip on your क्या कहते हैं CSET exams. It will help you ace your exams, as well as it will help you develop sort of क्या बोलते हैं a confidence you need to have when you're speaking a language, when you are discussing it. As we told you, communication can be oral or written. You need to be confident in your words, और वो जो confidence है हम लोग को basically क्या करना है, we need to be accurate. That's what I want you to be. I want you to be accurate. I want you to be grammatically accurate. So that's why we'll be able to focus on the grammar part. We'll be brushing up your grammar real good so that you will be accurate enough to give your exams, to speak, because हम लोगों का फोकस सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने का नहीं है, हमारा फोकस ये भी है दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट in while using your words. You should not in between, and the stammering, the things happen. It's not fun, yaar. It's very it makes you show that, it shows that you do not have confidence, and that's what I don't want to happen. I don't want it to happen. Okay, nevertheless, moving on. अंडरस्टैंडिंग, एज मैंने आपको बताया, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। हम लोग उसका ग्रामर स्टडी करेंगे, हम लोग सब स्टडी करेंगे। आपको पहले चीज़ समझना क्या ज़रूरी है कि हर एक एलिमेंट से, लाइक what I want you to achieve is accuracy. And how to achieve accuracy? See, all the things that you have studied till now in your English grammars and English grammar and everything is nothing but how to say, these are the rules of English grammar which we'll be talking about. ये रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया, मैं बेसिकली आपको क्या सिखाने वाली हूँ कि आपकी गलती कौन सी है। आपको बेसिकली you should be able to point out your own mistake and someone else's mistake when he's speaking or when you're watching your news, because yeah, people make different क्या कैसे उसको बोल सकते हैं, mistakes करते हैं न्यूज़ पे, आप नहीं जानते थे। I used to watch news with my father. I and my father, we watch news almost like once a week. We sit together and we watch news, और हम लोग न्यूज़ चैनल पे अलग अलग हमारे जो क्या बोलते हैं इनको एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, हम लोग इनके देखते हैं, एंड हम लोग इनकी कैसे बोल सकते हैं, वी वॉच देम speak in English, and we start, half of the time we are all laughing and pointing out their mistakes. I'm not bragging, but I'm very proud that I am able to point out someone else's mistake,
and I want you to be that confident as well to point out your own mistake and someone else's, because again, come on, we all want to be a grammar nazi, right? So again, focusing on that part कि हमको वो सारी चीज़ें अचीव करनी है, हमको दूसरों के एरर्स पकड़ने हैं, इसके लिए हमको पहले एरर्स कैसे होते हैं वो समझना ज़रूरी है, और विच विल बी फोकसिंग ऑन आर CSEET पोर्शन, विच विल बी फोकसिंग ऑन आर बिजनेस कम्युनिकेशन, विच विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग, हम लोग ग्रामर डिस्कस करेंगे, हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड, विच विल हेल्प अस फोकस एंड समझना ये सारी मिस्टेक्स, सो दैट वी आर स्पीकिंग फ्लुएंटली, सो दैट वी आर नॉट मेकिंग एरर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर गोल इज नॉट जस्ट टू क्रैक योर एग्जामिनेशंस विच यू इंटेंड टू डू, which we intend you to we intend you to make it we intend you to make it done, ठीक है, we want you to get it done. So उसके अलावा भी हमारा बहुत सारा फोकस, हम चाहते हैं कि you never have to go through grammatical errors ever again. ओके, सो आई थिंक ये काफ़ी इंट्रोडक्शन अच्छा खासा सा हो गया. अब हम लोग मूव करते हैं हमारे पोर्शन की तरफ. जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में ग्रामर पढ़ेंगे. फर्स्ट यूनिट विल बी ग्रामर एंड इट्स यूजेज. ये अब अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आई नो, रियलाइजिंग दैट all of the things that I'll be teaching you in the beginning is something that you're already done with. Yeah, you're already done with it and you've been studying about it for a long time. But we'll be repeating that again because it is very important to brush it up. Because ये क्या होता है, मतलब कैसा होता है, जंग लग जाता है ना, जंग वंग साफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता. हम लोग वही जंग साफ करेंगे और विल मेक श्योर दैट दिस टाइम व्हेन यू आर डूइंग योर grammar, it is the last time. I want this time to be the study of grammar, I want it to be with you forever. Because कैसा होता है, हर एक कुछ lessons होते हैं, हमारी टीचर्स हमको सिखाती है, it stays with you, और वो I want these things to stay with you forever. Okay, because see, as I told you, English इतना important है, and I honestly I am repeating the same thing, but I don't think I need to, do I? We live in India and we clearly know the importance of English language. In spite of living in India, we know how important English language is. So see, to dominate the world you need to dominate the language, because as it is, मतलब हम लोग कोई भी region में जाए, हम लोग ये language को देखते ही है. I have seen people who, like, I've been to Kerala and a lot of places in the south. I've seen people not being literate enough but able to speak English like so confidently and with such panache, and I want that panache to be in all of you. So let's just move on and brush up your grammars, and let's get started. I'll be talking about grammar. So what are grammar? What is English grammar? Grammar क्यों पढ़ते हैं? क्या होता है grammar, मैम? ग्रामर बच्चा ऐसा समझ लो, हर एक चीज़ के कोई ना कोई रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? तो हम लोग यही रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ेंगे. क्या होता है ये? देयर आर सर्टेन रूल्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड व्हेन यू आर स्पीकिंग, है ना? मतलब गलती नहीं होनी चाहिए कुछ, मतलब हर एक चीज़ का एक नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स फॉलो करना ज़रूरी है. और ग्रामर इज नथिंग बट नॉर्म्स दैट आर डिकोडेड. ओके, वी विल बी डिकोडिंग एवरी नॉर्म टू फोकस ऑन एक्यूरेसी, as it was our goal, isn't it? Moving on. Okay, English grammar is the way in which meanings are encoded in the wordings of English language. It is a set or body of rules that describes the various elements in the English language, that is phrases, words, clause, sentences, etc. Deciphering these basic set of rules will refine one's spoken and communication skills. Grammar is concerned with the systematic study and description of language. Broadly speaking, the part of grammar concerned with the changes in the form of words by internal modification or affixation is known as accident, and the manner in which the words are arranged in the form is called in a sentence is called syntax. देखा, कुछ रूल्स है जो हमको डिकोड करने पड़ेंगे मतलब उसको हमको अलग अलग एलिमेंट स्टडी करने पड़ेंगे उसके. जैसे कैसे मैंने बताया था, देयर इज अ स्टैंडर्ड इन अ सेंटेंस, मतलब वो सेंटेंस उसी स्टैंडर्ड से होता है, उसके अलावा और कोई स्टैंडर्ड से उसको हम लोग पढ़ते नहीं, उसको बोलते नहीं है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन वन सेंटेंस. इफ हम लोग एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेंगे और उसके अंदर एक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि
Ashwini is standing on a podium. Ashwini is standing on a podium. This has many elements. Okay, first of all, Ashwini is your subject. Okay, on is your preposition. Okay, A is your article. So ये ऐसे करते करते सब जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ये हम लोग स्टडी करेंगे इस हमारे इस पोर्शन में. ये चीज को डिकोड करना, डिस्क्राइब करना, वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेजेस, अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स विल बी आवर गोल. ओके, ग्रामर एक होता है, ये बेसिकली ग्रामर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सिस्टमैटिक स्टडी बताता है. सिस्टमैटिक स्टडी मतलब एकदम अच्छे से करना, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना, टू ले आउट इट प्रॉपरली, टू मॉडिफाई एवरी, टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, टू अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशन ऑफ इट एंड टू द बेस फॉर्म ऑफ इट इज आवर गोल. तो यहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट सिंटेक्स. हाँ, होल्ड ऑन. Grammar is concerned with the systematic study and description of language, as we told you. तो एक दो जो तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, as I told you, with the different elements, it is called the syntax. Okay, अब हम लोग देख सकते हैं हर एक पार्ट, there are certain things in an English language. जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, I'll just show it to you. The root word यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, रूट वर्ड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ वर्ड, इज अ नाउन. और इसी वर्ड को हम लोग 3 अलग अलग एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव, नाउन एंड ये एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब. तो ये समझो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस सब चीज़ों में जब हम लोग नाउन वाउन में जब चेंज कर रहे हैं, इसमें कुछ कुछ चेंजेस लाने पड़ेगा. ऑब्वियसली अगर हम लोग उसको एक एलिमेंट से उठा के दूसरे एलिमेंट में चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने के लिए कुछ कुछ एडिशंस करने पड़ते हैं. दैट्स द लॉ. टू चेंज द वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन to contradictory, to make a noun to adjective, it has to go through certain changes. तो शन निकाल के जो ये कर दिया हम लोगों ने, adjective लगा दिया, उसको contradictory कर दिया, ये एक change है. this is the law. what is the law? The law is to understand कि हर एक एलिमेंट को हम लोग जब एक एलिमेंट, एक वर्ड को तो पहले हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. उसको एज अ नाउन भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, वर्ब भी लिख सकते हैं, सब तरीके से लिख सकते हैं. आपको उसके अलग अलग तरीके में लिखने के लिए, to write that word, particular word in different types, different ये element, you need to make some changes to it. That's the law. But there are exceptions to every law, isn't it? The exception ये है कि हर ऐसा word नहीं होता जिसको आपको changes करने पड़ेंगे. Not every word in English language will be discussed, will we have to make changes about it. Like not every word, हर एक word में changes लगाने नहीं पड़ेंगे. You will not have to make changes in every word. I'll give you the example for the next one. The word beat remains unchanged in the following sentence. Okay, in spite of the fact that it is a different part of speech in every sentence. The child was beating the puppy gratuitously. Beat is used as a verb. The beat of the drum set sent people into frenzy. Beat is used as a noun. The beat generation has its own ethics. Beat is used as an adjective. So here you go. Here is the exception to the law. यहाँ पे beat, ये जो word है B-E-A-T, beat, ये word 3 अलग अलग sentence में 3 अलग अलग elements के हिसाब से use किया हुआ है. In first sentence this was used as a verb, adjective and noun. So पिछले वाले इसमें हमने contradiction में, contradictory में हमने changes करे उस sentence में, उस word में, to change the element of it. That was the law. But here you came to know the exceptions, that there are all of the words are not supposed to be changed. There are certain words in English language that doesn't need to be changed. So understanding, देखो यार, English is a very powerful, very big, very huge language. मतलब एक बहुत बड़ा, हर एक चीज़ का आपको substitution मिलेगा, हर एक word का substitution मिलेगा. You will be able to understand so many different things, so many different laws. तो you need to first understand, क्या understand करना है कि this particular thing that we are focusing on, you need to get all the concepts straight. Okay, because you will never be able to understand the entire language. You will never be able to, आप कभी भी पूरी language को समझ के, रट के, पढ़ के सब खत्म नहीं करोगे. It has taken me a lot of time to reach that fluency, to reach the, कैसे बोल सकते हैं, skill. It will take you the same amount of time as well. Okay, so let's move on to the आगे हम लोग पढ़ेंगे to the further part of our portion, because
विल बी फोकसिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स. अभी हमने एक वर्ड को कॉन्ट्राडिक्टरी एंड सबबीट का यूज किया. अब हम लोग थोड़े और वर्ड्स का यूज करेंगे, थोड़े और वर्ड्स मतलब थोड़े और एलिमेंट्स पढ़ेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. Parts of speech in English. The parts of speech in English indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. Words are given into 8 classes according to the work they do in a sentence. They are given as follows: noun, pronoun, adjectives, adverb, verb, prepositions, conjunctions, and interjections. Okay. वर्ड्स जैसे हमने देखे अलग अलग तरीके से. पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या? In one sentence, how different elements, how different words, how different classes of words, how different classes are put it in a one sentence, how मतलब words are defined it categorized into one sentence, हम लोग वो पढ़ेंगे. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब जो हमने पढ़ा, ये अलग अलग एलिमेंट्स है, ये अलग अलग पार्ट्स है एक स्पीच के. इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, these 8 forms are the parts of speech. There are a lot more that are not present, but will not be focusing on that here. We'll be focusing on the things that are available to us, okay, that are supposed to be done by us. Moving on, noun. नाउन क्या होता है? अरे बाप रे, नहीं पता ना नाउन. सबको पता है नाउन क्या होता है, बट we have been studying about noun since, I don't know, since kindergarten. No, actually not kindergarten, but we have studied about noun a long time, for a long time, but I'll still be repeating it again once again. Noun क्या होता है? नाउन. नाउन इज अ प्लेस ऑफ अ नेम, प्लेस ऑफ अ थिंग, इवेंट, सब्सटेंस, क्वालिटी, एनीथिंग. बेसिकली ऐसा समझ लो, कोई भी चीज़ का जो नामकरण हुआ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नाउन. नाउन मतलब नाउन याद करना. अश्विनी मैम ने क्या बोला था? नामकरण कर दिया. हाँ, बस ये याद करो दैट एक सेंटेंस में पहले तो ये चीज़ याद रखो, एज everything, it can be a thing, it can be a quality, it can be a substance, it can be anything, it can be a place, it can be a person. तो एक सेंटेंस में एक नाउन नहीं होगा, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन होंगे. वेरी ऑब्वियस, आई नो, वेरी ऑब्वियस, बट विल स्टिल बी फोकसिंग ऑन वन एग्जाम्पल. ओके. That bus makes a lot of noise. ये देखो, द बस मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस. यहाँ पे द बस मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस बोला हुआ है. ये वर्ड में सबसे पहले तो हमारा नाउन आएगा और वेरी लॉजिकल, बस. ठीक है. यहाँ पे फिर नॉइज आएगा, इट इज़ ऑल्सो. और यहाँ पे ये चीज़ समझो, ये सेंटेंस वॉज अ वेरी स्मॉल सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस. इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए. एक एलिमेंट आया 2 बार, विच वॉज नाउन वॉज रिपीटेड ट्वाइस. तो वही मेरा बताने का तरीका है कि नाउन अलग अलग चीज़ें होती है. नाउन इज कैसे बोल सकते हैं, वेरी वास्ट कैटेगरी ऑफ एलिमेंट, लाइक इट इज़ अ वेरी बिग कैटेगरी, बहुत बड़ा कैटेगरी है वो, जिसको समझते हैं हम लोग. ठीक है. अब नाउन के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, एक्चुअली पार्ट्स नहीं, टाइप्स होते हैं. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. अच्छा, होल्ड ऑन. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये भी आपने बहुत पहले से समझे, पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है. होल्ड ऑन. दैट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को याद करना तो पहले 2 चीज़ें याद रख लो. कॉमन नाउन इज व्हेन यू आर कैटेगराइजिंग इट. ठीक है. and proper noun when you are picking it out of a category, when you are specifying it. Categorizing is common noun, specifying is proper noun. Okay. इसके बाद में अगर सोचना है कॉमन नाउन क्या है मतलब कैटेगराइज, प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफाइज, स्पेसिफिक. ठीक है. अब हम लोग पहले एक बार उसको स्टडी करते हैं, उसका डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, एंड देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू गेट इट डन इन योर ब्रेन, डन इन योर हेड. ओके. सी, a common noun is a word used to name a general item. It is more generalized version of a proper noun which names a specific living or non-living thing, place or idea. Common nouns are the names given in common to all persons, places, things of the same class, whereas proper nouns are names given to particular places or things. Moving on, देखो, जैसे अभी मैंने बोला मम्मी मम्मी आई एम गोइंग टू द बैंक. यहाँ पे हमारा जो बैंक है, दिस वर्ड
बैंक जब मैंने बोला, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग वेयर आई एम गोइंग, आई एम नॉट टेलिंग माई मदर वेयर आई एम, इफ आई एम गोइंग टू ICICI बैंक, इफ आई एम आई सॉरी नॉट ICICI, if I'm going to SBI, if I'm going to Bank of Maharashtra, if I'm going to RBI, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट, बिकॉज आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट, और एक बैंक ये कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। इसमें नहीं बताया कौन सी कैटेगरी, क्या क्या नहीं, क्या वो, ये सब नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया, बैंक में जारी मैंने बोल दिया, आई टोल्ड हर आई एम गोइंग टू अ बैंक। तो जब मैंने बैंक बोल दिया तो क्या हो गया, मैंने कैटेगरी नहीं किया उसको, क्या सॉरी मैंने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, इसीलिए वो बैंक यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाता है। बट इफ आई से मम्मी आई एम गोइंग टू RBI, तो RBI ये दिस इज अ स्पेसिफिक नेम दैट इज गिवन टू अ बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं नहीं जा सकती, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो इट इज़ अ सेंट्रल बैंक, सो आई कैन नॉट गो देयर, बट नेवरदलेस मैं RBI जा रही हूँ, मैंने बोल दिया। तो RBI जब मैंने बोला, ये प्रॉपर हो गया। प्रॉपर हो गया मतलब क्या, दिस इज अ प्रॉपर नाउन दैट इज गिवन टू, ये मतलब वो एक प्रॉपर जगह का है। तो जब मतलब जब मैंने बैंक बोला था तो मेरी मम्मा को नहीं पता था कि अश्विनी को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है, पर जब मैंने ये RBI बोला तो मेरी मम्मी को पर्टिकुलरली पता होगा कि ये कहाँ जाएगी, RBI जाएगी, तो ये पर्टिकुलर ये बैंक में। तो अगेन प्रॉपर नाउन इज व्हेन यू आर स्पेसिफाइंग इट, कॉमन नाउन इज व्हेन यू आर कैटेगराइजिंग इट इन अ ग्रुप। जैसे मैंने बोल दिया पेन, लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज अ पेन। एक्चुअली इट डज नॉट, एक्चुअली कैसे बोल सकते, दिस डज नॉट क्वालिफाई एज अ पेन बिकॉज आई कैन नॉट यूज इट ऑन पेपर, बट स्टिल मैंने इसको पेन बोल दिया। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज कर दिया है पूरे कैटेगरी में, इन द कैटेगरी ऑफ पेन, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। पर अगर मैंने कॉमन नाउन, अगर मैंने इसको बोला जेल पेन, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन, ये वर्ड समझ के आपको समझ में आ रहा है। कलेक्टिव, व्हाट इज कलेक्टिव? कलेक्टिव इज व्हेन यू आर ग्रुपिंग अप। अगेन रिमेंबर, कॉमन नाउन इज कैटेगराइजिंग, क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफाइंग, एंड कलेक्टिव नाउन इज ग्रुपिंग देम टुगेदर। तो जैसे अब मैं बोली कि आई नीड अ बुके ऑफ फ्लावर्स, आई नीड अ बुके ऑफ फ्लावर। तो बुके बोलने के बाद तुम, अब तुम्हारे दिमाग में एक रेड रोज पकड़ा हुआ इंसान दिख रहा क्या? नो, यू विल सी अ वेंडर हु इज होल्डिंग a good, like he's holding different flowers in a wrapping up in a plastic and everything and giving it to me for a certain amount of money। तो ये जो दिख रहा है, बिकॉज एक जब रोज होता है वो, जैसे मैंने एक फ्लावर बोला, फ्लावर इज कॉमन, रोज इज प्रॉपर, और बुके इज कलेक्टिव। समझ में आया? क्योंकि हम लोग जब बुके, ये सर्टन वर्ड्स कलेक्टिव चीज़ों को दिया जाता है जिसको हम लोग एक या दो में नहीं गिनते, उसको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं, उसको किया जाता है कलेक्टिव नाउन। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग एक बार उसका ये पढ़ेंगे। आई होप यू आर ऑल डन विथ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन। आई वंस रीड द डेफिनेशन एंड देन विल मूव ऑन टू आवर अनदर एलिमेंट ऑफ द क्या कहते हैं स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। Common nouns include a collective noun represent more than one person or a thing in a class. It isn't possible to just have one lion in a pride, and a single flower does not make a bouquet. Thus, a collective noun always describes a plurality of one kind or the another. प्लुरैलिटी मैंने बताया था ना, जैसे प्लुरैलिटी मतलब जब वो मैंने रोज सोचा तो रोज एक इंडिविजुअल था, पर बुके सोचा तो इट इज नॉट वन रोज, इट दीज आर certain amount of roses, more than one roses, plural roses, es, जिनको हम लोगों ने ग्रुप किया है, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया। जैसे when I am outside I see a bird, that is just a common noun, but when I see group of birds, तो हम लोग उसको flock of birds बोलते हैं। तो flock ये जो नाम है, ये जो word है, this is specified for a group of birds, जिसको हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन बोला है। देयर आर सर्टेन वर्ड्स फॉर एवरीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, और लॉट ऑफ आर नोन टू अस एंड लॉट ऑफ आर नॉट नोन टू अस, बट दैट डजंट मैटर। बट देयर आर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं है, बट है अवेलेबल अपने इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल, बट विल नॉट बी फोकसिंग ऑन दैट, विल बी फोकसिंग ऑन द प्रोनाउंस एंड नाउन्स पार्ट ऑफ द नाउन पार्ट ऑफ आर पोर्शन। प्रोनाउंस, let's focus on pronouns. Pronouns. Pronouns are used in the place of nouns. Pronouns may be personal or relative. जैसे अभी एक सेंटेंस बताती हूँ, ठीक है। अश्विनी इज गोइंग टू द मार्केट, अश्विनी इज गोइंग टू अश्विनी इज गोइंग टू द मार्केट, अश्विनी इज गोइंग टू गो टू गार्डन। इसमें अश्विनी अश्विनी हर बार यूज करना
is not smart. It does not flow with it does not flow in your, मतलब words में वो ऐसे flow नहीं होता, link नहीं लगती उस चीज़ की, ठीक है. It doesn't roll off your tongue. It is जब मैं अब अश्विनी हमारे सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए अगर मैं कोई नाउन लगाती हूँ उसको बोलते हैं प्रोनाउन. व्हेन आई एम यूजिंग, व्हेन आई एम रिप्लेसिंग द क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, throwing it away and then applying the pronoun in the place of it is called as pronoun, is known as personal and relative pronoun. pronoun के दो types है, personal और relative. personal pronouns are pronouns जो represent करता है person और thing. जैसे it represents, जैसे मैंने बोला अश्विनी is going to the garden, अश्विनी is going to the market, अश्विनी is going to go to garden. तो अश्विनी is going to the market and she is going to go to the garden. यहाँ पे she वर्ड को मैंने लगा दिया विच इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन, जिसको मैंने निकाल दिया. पहले मैंने अश्विनी, सेकंड जो अश्विनी जो रिपीट हो रहा था, आई रिमूव्ड इट एंड आई पुट दिस व्हाट आई सेड she in that place, which is called as personal pronoun. Replacing your subject, replacing your nouns in spite of, it doesn't have to be a subject, okay, it doesn't purposely have to be a subject, it can be a noun, and replacing that is called as pronoun. It's called as, sorry, it is called as personal pronoun. Now we'll move on to the relative pronoun. Relative pronoun, the most important common relative pronoun are whom, which. Relative pronoun acts as a pronoun, as a conjunction. At the same time, this is the boy who saved my life. देखो यहाँ पे पहले तो दो चीज़ें समझी है हम लोगों ने. बहुत सारे जो कंजक्शंस होते हैं, बहुत सारे कैसे बोल सकते हैं हम लोग, लिंक वर्ड्स जो होते हैं, जो कंजक्शंस होते हैं, वो किसके जगह पे यूज़ किए हुए हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे यूज़ किए. जैसे whom, who, whatever, whoever, ये सब चीज़ें भी हम लोग किसमें, रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, एक प्रोनाउन के जैसे भी एक्ट करता है, एक कंजक्शन के जैसे भी एक्ट करता है. रिलेटिव प्रोनाउन एज द नेम सजेस्ट क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन द नाउन, द क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट एंड द नाउन एंड एवरीथिंग. मतलब वो एलिमेंट्स में एक रिलेशन क्रिएट करता है. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अश्विनी इज अ गर्ल, अश्विनी इज गोइंग टू गो टू गार्डन, या अश्विनी इज गोइंग टू गो एंड ब्रिंग वेजिटेबल्स. तो यहाँ पे अश्विनी इज अ गर्ल, अश्विनी ने नाम निकाल दिया हमने और फेंक दिया, और हम लोगों ने अश्विनी को नहीं फेंका, अश्विनी का नाम फेंका. तो उस जगह पे मैंने लगाया हु. अश्विनी इज अ गर्ल हु इज गोइंग टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. हम लोग जब रिप्लेस करते हैं, हम लोग जब उसको कंजक्शन से रिप्लेस करते हैं, उसको भी रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. बहुत सारे वर्ड्स जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, whoever, whomever, that, ये सारी चीज़ें कंजक्शंस भी है. कंजक्शंस मतलब लिंक वर्ड्स है, तो वो भी पढ़ाऊंगी आगे जाके कंजक्शंस क्या होते हैं, बट अभी सिर्फ जस्ट टू गेट द आइडिया ऑफ इट, ये जो होता है इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस, एक सेकेंड होल्ड ऑन, लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज possessive pronoun. Possessive, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? Don't you like this, when you read this word, don't you realize something, it acts as something is possessed. like possess करना मतलब वो चीज़ own करना, ठीक है. possess इसका मतलब ही क्या होता है, to own something. तो when I say possessed, possessive, तो उसका मतलब होता है to own something. तो possessive pronoun, as the name suggests, is showing that you own something, to that showing that you possess something. Like example, I am in a classroom. I am in a classroom with all of you. आई डोंट थिंक जल्दी होने वाला है ये पैंडेमिक एंड ऑल, बट लेट्स जस्ट से कि मैं क्लासरूम में हूँ और मैंने बोला ये किसका पेन है, हुज पेन इज दिस. तो समवन विल स्टैंड अप एंड टेल दिस पेन इज माइन. माइन, ये जो वर्ड है MINE, ये क्या बता रहा है, ये वर्ड, सिर्फ यही वर्ड एक चीज़ बता रहा है कि यू हैव द ओनरशिप ऑफ दिस पेन. ओके, तो ये चीज़ की जो ओनरशिप तुम्हारे पास में है, ओनरशिप होना, दैट इज नथिंग बट पोजेसिंग इट. That's it. That's understanding that it is explaining कि how when you're possessing something is called as pronoun. अभी मैं एक बार और recap कर लेती हूँ, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी. हमने noun पढ़ा, हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स ये पढ़ा कि कैसे अलग अलग चीज़ें होती है, कैसे in a sentence how you will able to see different elements, how they are different parts of speech. We also studied noun, we studied different types of common noun, for proper noun, collective noun, प्रोनाउन. प्रोनाउन में हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. हम लोगों ने इतना सारी चीज़ें पढ़ा. अब हम लोग विल बी मूविंग ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर ग्रामर जर्नी, दैट इज एडजेक्टिव.
Before this, I'll be signing off. I hope all the things that I've taught you are helpful to you. You have been able to understand that well, and I'll make sure that ये सारी चीज़ें अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रही, you can contact me anytime, okay? Because understanding all this is very important, because this is almost the last time you'll be studying the grammar portion. Okay, this is, I'm sure this is the last time you'll be studying, so I want this to be with you forever. So because that is what our goal is. Okay, we the team of VP work to make your dream work. Okay, so let's just signing off. I'm signing off here. Thank you so much.